Morning students, today we are going to deal about a new topic of class 9th biology, that is why do we fall ill. Myself Mahendra Singh, PGT Biology, JNV Shegaon, and this is the topic for the biology class 9. So let's have a next slide. So what is health and what's it is failure? So we can say health is the state of the physical, mental and social well-being. It means health, or simply we can say it is the complete fitness for physical, mental and social well-being. Clear? Now health, what are the conditions? Very good. What are the conditions for the good health? क्या क्या conditions good health के लिए होनी चाहिए? Good physical and social environment. सोशल इन्वायरमेंट, फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए. सोशल इन्वायरमेंट शुड बी गुड. गुड इकोनॉमिक कंडीशन, you have enough amount of money so you can survive, and social equality and harmony. Is it clear? So for the good health you have to, that is first one is good physical and social environment, good economical conditions and social equality. Is it clear? So these are the necessary events that you are needed during for good health. Now, good physical and social environment means what? It means it includes the clean surrounding, good sanitation. Surrounding should be clean. Good sanitation. Sanitation means whatever the surroundings are, it should be clean. Clear? Now, proper garbage disposal. It means whatever the waste created in a home, in our surrounding, should be disposed in a proper way, and we should get clean drinking water. If we are not getting clean drinking water, that may arise few physical health hazards, physical health effect. Clear? So these are the necessary events for good health. Clear? Now what is the good economic condition? These includes the job opportunity. If you are employed, then you get monthly salary or a good fund, then it is very good. If you are not employed, unemployed, then it is very impossible to survive in present scenario. So there is good opportunity for the earning that leads to purchase a good nutritious food and leads to a healthy life. इट मीन्स क्या होता है कि अच्छा, अब अगर जॉब्स नहीं हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, और जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इकोनॉमिक बैलेंस कम होगा, और इकोनॉमिक बैलेंस कम होगा तो आप परचेज फूड नहीं कर पाएंगे न्यूट्रिशियस, और न्यूट्रिशियस फूड नहीं परचेज करवाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको अनहेल्थी लाइफ मिलने वाली है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, which are very necessary for healthy and peaceful life. Is it clear? Next slide. Now what is the difference between the healthy and disease free? What is the difference between healthy and disease free? Is it clear? So let us see. The healthy, it is a physical state. This one is it is a physical, mental and social well-being, एंड इट इज़ द स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द डिसीज. सो हेल्थी क्या होता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होने वाला है कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की हम बात करने वाले हैं, वो फिट होना चाहिए, उससे रिफ़र करते हैं. क्लियर? वहीं डिसीज़ में क्या होना चाहिए? डिसीज़ की सिचुएशन में इट इज़ द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, इट इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसीज़. हेल्दी में क्या होता है? इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट. इट मीन्स हमेशा हम इस पर किस पे टर्म, कौन कौन से टर्म्स पर बात करते हैं हम? फर्स्ट इंडिविजुअल पर, देन उसके बाद सोशल पर, देन उसके बाद फिजिकल पे. तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स की बात की कि क्या क्या है यहाँ पर. पहला आता है अपना कौन सा? पहला कि यहाँ पर आ गया अपना इंडिविजुअल, देन उसके बाद क्या आ गया अपना सोशल, देन उसके बाद क्या आ गया अपना फिजिकल. क्लियर? तो याद रहेगा आपको. चलिए तो हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं यहाँ से. नेक्स्ट, डिसीज फ्री में क्या रिफर करता है? इट रिफर ओनली टू इंडिविजुअल, तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल ओनली. इज इट क्लियर? इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ. ठीक है, इंडिविजुअल की जो है वो गुड हेल्थ हो सकती है. इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और अ पुअर हेल्थ. अब डिसीज़ फ्री में क्या हो सकता है? एक पर्सन की गुड हेल्थ भी हो सकती है, पुअर भी हेल्थ होता है, लेकिन हेल्थी जो है वो किसको रिफ़र करता है? वो रिफ़र करता है कि वो वहाँ पर जो है
वो क्या होगा वहाँ पर, गुड हेल्थ या पुअर हेल्थ दोनों की कंडीशन उसकी हो सकती है। इज इट क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स दोनों क्लियर हुए होंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट डज डिसीज लुक लाइक? डिसीज आपको कैसी इफेक्ट दिखती है, किस तरह की दिखती हुई है? व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिसीज, अगर कोई पर्सन जो है वो डिसीज अफेक्टेड है, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब नॉर्मल उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, दूसरा उसका सर्कुलेशन या मूवमेंट, जो भी उसका फंक्शंस है, और अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम द वॉर्स, मतलब वॉर्स मतलब क्या हुआ, एक नॉर्मल फंक्शनिंग से वो बहुत बुरी कंडीशन में या एबनॉर्मल सिचुएशन में वो पहुंच जाते हैं। These changes gives to the sign of these changes give to sign of the disease that is known as symptoms। तो symptoms यहाँ पर क्या हुए? symptoms का मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन है, उसका कोई नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, तो कुछ वो हमें साइन देता है, कुछ हमें वो जो है अपीयरेंस देता है, और वो अपीयरेंस जो है, चेंजेस अपीयरेंस जो है वो देता है, जब उसको बोलते हैं हम सिम्टम्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियन में यहाँ पर टर्म किसके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है? फिजिशियन टर्म यूज़ किया जा रहा है डॉक्टर के लिए। तो फिजिशियन जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर उनके बेसिस पर वो आपको पर्टिकुलर टेस्ट करेगा, पर्टिकुलर वो आइडेंटिफिकेशन करेगा, और उनको हम नाम देते हैं साइन। तो आपको नॉर्मल जो भी बीमार होते हैं, तो आपकी जो सिचुएशन आती है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें सिम्टम्स ऐसे हैं। वो सिम्टम्स आप खुद फील कर सकते हैं, जबकि साइन जो है वो डॉक्टर देख कर, और डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करता है, देन उसके बाद वो क्या करता है, उसके टेस्ट करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है टाइप ऑफ डिसीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिसीज? डिसीज आर मेनली ऑफ फ्यू टाइप्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज। फर्स्ट वन इज एक्यूट डिसीज। फर्स्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पर? एक्यूट डिसीज। द डिसीज विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज एक्यूट डिसीज। उसको हमने क्या नाम दिया? एक्यूट डिसीज। अब दूसरा आता है क्रोनिक डिसीज। ठीक है, क्रोनिक डिसीज जो है, जिसका मतलब है डिसीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैज लॉन्ग ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ, तो उसको क्या बोलते हैं हमने? क्रोनिक डिसीज। तो आप दो तरह की डिसीज यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, पहला कौन सा आ जाता है अपना कि एक्यूट डिसीज, एक ऐसी डिसीज जो कम समय तक आपकी बॉडी में रहती है, इजीली वो ट्रीट होती है, और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं जब दिखते, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? एक्यूट डिसीज। क्या रहेगा? उसको बोला जाएगा एक्यूट डिसीज। जैसे कोल्ड है, कोल्ड आपको हुआ 3 to 4 डेज में ऑटोमेटिक आपको ठीक हो जाता है। कफ, इसका भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। देन उसके बाद आता है टाइफॉइड, तो इसका भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, कुछ दिन का रहता है, टेस्ट करवाया, मेडिसिन लिया, आप ठीक हो गए। कोलेरा भी उसी तरह का डिसीज है। ठीक है, इट मीन्स कोल्ड, कफ, टाइफॉइड एंड कोलेरा, these are the disease which last only for a few times and very little effect on the health, actual effect. Now what is chronic disease? The chronic disease which last for a long time, बहुत लंबे समय तक रहती है, आपको इसकी लंबी समय तक मेडिसिन लेनी पड़ती है, और कई बार ये जो है लाइफ लॉन्ग आपको बियर करनी पड़ती है। ठीक है, और इसका इफेक्ट आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग पर भी होगा। नॉर्मल फंक्शनिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, जैसा आप जानते होंगे, डायबिटीज़ इट मीन्स क्या हुआ कि आपकी बॉडी में क्या हुआ, शुगर कंटेंट बढ़ जाता है। शुगर कंटेंट मतलब मेटाबॉलिकली आप जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, हमारे कुछ हार्मोन्स जो है सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं, जो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज़ इटसेल्फ ए डिसीज़, लेकिन डायबिटीज़ आपकी कई तरह की डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई तरह के इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और कई तरह के जो है वो जैसे आपको हील नहीं हो पाते, मतलब आप ठीक नहीं हो पाते। ठीक है, आप इवन डायबिटीज़ जब बढ़ गई तो आप कोमा में भी जा सकते हैं। इट मीन्स हमने देखा डायबिटीज़ खुद एक डिसीज़ के रूप में है, लेकिन कई तरह की डिसीज़ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस लंबे समय तक डिसीज़ चलती है आपकी बॉडी में, और परसिस्टेंट डिसीज़ है, और इसका इफेक्ट आपके लंग्स पर जाता है, और लंग्स पे जाने की वजह से क्या है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है एलिफेंटोसिस। आपने सुना होगा एलिफेंटोसिस, इट मीन्स ये क्या है, वॉर्म्स के थ्रू होती है डिसीज़, और ये वॉर्म के थ्रू होने वाली डिसीज़ यहाँ पर आपके जो है आपके पैर या जो है वो एलिफेंट जैसे दिखने लगते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा एलिफेंटोसिस है। ठीक है, याद रहेगा। देन आर्थराइटिस, इट इज़ द डिसीज रिलेटेड विद द बोन्स। ठीक है, जॉइंट पेन्स यहाँ पर होने लगता है, और इसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग आपकी अफेक्ट होगी, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका मिलता है। और कैंसर आप लोगों ने सभी जानते हैं
कि अनकंट्रोल मास ऑफ द सेल, और ये आपकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन हमने देखा कि क्रोनिक डिसीज जो है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक डिसीज है, उनसे ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इन्फेक्शियस डिसीज। अब यहाँ पर तीसरे टाइप की जो डिसीज हमारे सामने आई है वो है इन्फेक्शियस डिसीज। अब क्या इन्फेक्शियस डिसीज क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए एक वर्ड लिखा है कम्युनिकेबल डिसीज। क्या है ये? कम्युनिकेबल डिसीज। दीज आर द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्थी पर्सन। ये कैसे होता है? एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन पे चल सकता है। जैसा अभी के टाइम में हम देख सकते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, और जिसमें क्या हो रहा है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को डिसीज पहुंच सकता है। तो कोरोना किस तरह की डिसीज हो गई हमारी यहाँ पर? कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज। आखिर इसका नाम इन्फेक्शियस डिसीज क्यों है, ये कम्युनिकेबल डिसीज क्यों है? क्योंकि ये कम्युनिटी के थ्रू फैलती है। किसके थ्रू फैलती है? कम्युनिटी में। अगर कम्युनिटी में आप कांटेक्ट में आए किसी पर्सन के तो वो डिसीज आपको होगी। इज इट क्लियर? जैसे हम देख सकते हैं कि ये किस किस के थ्रू फैल सकती है? ये एयर के थ्रू फैल सकती है। किसके थ्रू फैल सकती है? एयर के थ्रू। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एयर का लिखा हुआ है वर्ड। देन दूसरा वर्ड है यहाँ पर वाटर। इन्फेक्टेड वाटर है या कंटेमिनेटेड वाटर है। कंटेमिनेटेड फूड। वेक्टर। नाउ व्हाट इज द वेक्टर? Vectors are the agent responsible for transmitting the infectious disease. Normally vectors are living components। ठीक, जैसे मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो ने आपको बाइट किया, देन उसके बाद फिर किसी दूसरे पर्सन को बाइट किया, फिर तीसरे पर्सन को बाइट किया, और अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और इन्फेक्टेड पर्सन के बाद उसने वो क्या किया, किसी दूसरे को बाइट किया, तो वो क्या होगा? ब्लड का ट्रांसफ्यूजन उधर कर देगा, और ऐसी सिचुएशन में वो डिसीज भी ट्रांसफर होगी क्योंकि जो ब्लड में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है कि वाटर फूड एंड वेक्टर जो है इनके थ्रू ये डिसीज हमारी ट्रांसमिट हो रही है। तो दीज आर द कम्युनिकेबल एजेंट्स। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू भी जाता है, कई तरह की स्किन डिसीज है या सेक्सुअल कांटेक्ट है। तो जैसे देखते हैं कौन कौन सी डिसीज है। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है आप जानते हैं कि किसी भी तरह का जो है टच हमारे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर होता है, से हम लेते हैं, जैसे पेन हमने लिया या हैंकी लिया या नोटबुक या जो भी कुछ लिया उस पर्सन से, तो वो आपको डिसीज हो सकती है। ठीक इसी तरह चिकन पॉक्स भी वो इन्फेक्टेड डिसीज है। नेक्स्ट उसके बाद मम्प भी इसी तरह की डिसीज है, वायरल डिसीज है, मम्प है। ठीक है, मम्प जो है वो आपकी कहाँ है? सलाइवरी ग्लैंड्स में होती है। मीजल्स है। देन टाइफॉइड भी इसी तरह की जो इन्फेक्टेड डिसीज है। कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, मलेरिया एंड एड्स। दीज आर ऑल इन्फेक्शियस डिसीज। ये सभी के सभी क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज है, तो किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को हो सकती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इसमें जस्ट अपोजिट है इन्फेक्शियस डिसीज का मतलब। डिसीज तो ये भी है, डिसीज तो सारी की सारी हैं। दीज आर द डिसीज विच इज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब अगर किसी पर्सन को हो गया, उसके साथ हम हग करते हैं, उसके साथ हम मिलते हैं, हैंड शेकिंग करते हैं, या किसी भी तरह का कुछ कांटेक्ट में रखते हैं, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन को नहीं होती। जैसे यहाँ पे कौन सी डिसीज आ रही है? बेरी। कौन सी आ रही है? बेरी। देन उसके बाद आ गई कौन सी? रिकेट्स। बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी आपकी गम्स को होती है। नाइट ब्लाइंडनेस रिलेटेड विद आईज। डायबिटीज़, किसी एक पर्सन को डायबिटीज़, जैसा हम सब जानते हैं हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं किसी को डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, अब उसको डायबिटीज़ होना है तो इसका मतलब श्योर नहीं है कि हमको डायबिटीज़ होगी उसके साथ रहने से। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ? इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। कैंसर पेशेंट के साथ रहने से डिसीज़ नहीं होती। ठीक है, उसका केयर की ज़रूरत होती है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर जिसका हाई होगा तो उसके साथ रहने से वो डिसीज़ नहीं होती। इज इट क्लियर? तो इस तरह की डिसीज़ को हम क्या नाम देते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। क्या नाम देते हैं हम उनको? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो आपको ये इतना याद रहेगा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कॉज ऑफ डिसीज। ठीक है, तो डिसीज आर कॉज्ड बाय कौन कौन से एजेंट्स हैं? दीज आर द पैथोजन। पैथोजन मतलब उनको बोला जाता है जो क्या करते हैं बच्चों? पैथोजन आर वो दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज। उनको क्या नाम दिया हमने? क्या? रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज। ठीक है, याद रहेगा आपको पैथोजन क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज। ठीक है, क्लियर? चलिए हम बात कर रहे थे पैथोजन्स की। देन उसके बाद हम बात करेंगे अब पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं।
पैथोजन हो सकता है वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकता है। इनकी डिसीज़ हम आगे भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है कौन सा अपना, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। इसकी वजह से भी डिसीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें खाना ढंग से नहीं मिलता, या मिलता है तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिल पाते, जैसे उसमें प्रोटीन कम है या कार्बोहाइड्रेट कम है या फैट्स कम है। ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स अगर कम होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट। इज इट क्लियर ना? उसके बाद आता है माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हमारी किडनी या किसी पर्सन की किडनी या लीवर काम करना बंद कर देता है। उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, या पुअर उनकी वर्किंग होती है, उसकी वजह से भी डिसीज़ होती है, उसे बोलते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। क्लियर? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आजकल जो है हम देख सकते हैं कि कितने पोल्यूशन वहाँ पर हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसकी वजह से भी डिसीज़ होती है। बाहर सराउंडिंग आपका कैसा है, उसकी वजह से मॉस्किटोज़ होंगे, या उसकी स्मेल की वजह से आपको कोई डिसीज़ हो सकती है, तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आती है। देन उसके बाद आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जीन लेवल पर जो चेंजेस हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। और वो जो डिसऑर्डर्स हैं जेनेटिक लेवल के डिसऑर्डर्स, उन डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा है कि आपको कई तरह के इन्फेक्शंस, कई तरह की डिसीज़ मिल रही है, जीन लेवल पर चेंजेस, ठीक है, तो उसको बोल दिया हमने जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आई होप कि ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए होंगे और इनमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है ना? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ को हमने कुछ क्लासिफिकेशंस किए हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ के हमने कुछ क्लासिफिकेशंस किए। द एजेंट विच कॉजेज द इन्फेक्शियस डिसीज आर नॉन एज पैथोजन। जैसा मैंने बताया, पैथोजन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज। अब इनको कैसे कैसे क्लासीफाई किया है, कुछ हैं वायरस, जैसा आज के टाइम पे आप सुनते हैं कि कोरोना वायरस है। देन उसके बाद बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोन्स एंड वॉर्म्स है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वायरस जो इन्फेक्शियस एजेंट्स है, ये नॉर्मली आपकी बॉडी में कौन कौन से, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनमें से कौन कौन से करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, देन उसके बाद है इन्फ्लुएंजा है, ये मीजल्स है। कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा जो आपने देखा ना कि कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, देन उसके बाद रनिंग नोज की कंडीशन हमारी आती है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देन उसके बाद आ गया मीजल्स, क्या आ गया, मीजल्स। उसके बाद आ गया मम, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, दीज आर द डिसीज। ये है क्या है, अपनी डिसीज है। क्लियर? देन उसके बाद वायरल डिसीज है। उसके बाद आता है अपना कौन सा, बैक्टीरियल डिसीज। कौन सा आती है, बैक्टीरियल डिसीज। तो कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, कोलेरा, वाटर के थ्रू फैलती है अपनी, है ना, ठीक है, टाइफॉइड वाटर के थ्रू इन्फेक्शन है ना, ट्यूबरकुलोसिस या लंग्स को अफेक्ट करती है, टिटनस, एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिसीज कौन कौन सी अपनी, कोलेरा, टाइफॉइड, देन उसके बाद क्या आ गया अपना, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग। इज इट क्लियर? इतना याद रहेगा आपको ना। फंगाई जो मोस्टली जो इफेक्ट करती है वो हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है, स्किन को इफेक्ट करती है, स्किन का इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है स्किन इन्फेक्शन। यहाँ पर आ गया प्रोटोजोन से, आप लोगों ने सुना होगा मलेरिया, वो एक्चुअल में उसका वेक्टर जो मॉस्किटो है, लेकिन वो प्रोटोजोन्स है, वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, प्रोटोजोन्स को ट्रांसफर कर रहा है। देन उसके बाद आता है कालाजार, देन अमीबोइक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, ये सारे के सारे जो है प्रोटोजोन्स की डिसीज है। किसकी है, प्रोटोजोन्स की है। देन उसके बाद आता है वॉर्म्स की, किसका, वॉर्म्स का, ये भी इन्फेक्शियस है, मैंने आपको बताया, एलिफेंटोसिस, देन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। So these are the disease responsible for, these are the agent responsible for multiple disease। क्लियर? इतना याद रहेगा। तो बच्चों आज तक के लिए आज के टॉपिक हमारा जो है वो यही है, इन्फेक्शियस डिसीज और उनके कौन कौन से एजेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।